I'm so happy to be here first. I'm your new history teacher and welcome to my history class. I hope you all are very fine. You all are in a pink of health and are doing well in this pandemic. And also that I want to tell you that history is what is history actually? History is something that we learn from the past. But now, at this time, at this event of lockdown, we are witnessing uh, the biggest historical event of the century. That we are in a lockdown for 6 months, for past 6 months. The world is witnessing, and we are witnessing. So we are a part of history. We are a part of this historical event that we are witnessing. Such a great lockdown, such a big lockdown for 6 months. So history is nothing. History is just a uh, something to learn from the past and something to not commit the same mistakes that we did in the past. So history is something I will be teaching you on history. So today lesson is uh, before starting the lesson, I will also like to tell you that what we learned in the previous lesson. But the whole portion of history is regarding our beloved leader, Chhatrapati Shivaji Maharaj. As you all know, our beloved leader, and he was a great planner, a great organizer, infantry, cavalry, navy. You have all studied this in the last lecture. So today's meeting, I would like to tell you all that today's meeting is all about Chhatrapati Shivaji Maharaj. But before starting the lesson, I would also like to sing for you a small song related to our leader Chhatrapati Shivaji Maharaj. So if you want, you can join me in the end of the class. I will sing the song again for you all. But for now, I will sing and you just pay attention. If you like the song, just give me a thumbs up in the chat box. Okay? So I would like to sing a song for you as our portion is related to Chhatrapati Shivaji Maharaj. So this song is very relevant to our beloved leader Chhatrapati Shivaji Maharaj. So let us start the song. Are you all ready for the song? Let us start the song. Okay. मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा शिवाजी की बुद्धि के आगे औरंगजेब ने मुंह की खाई तख्ता उलट बीजापुर का तबादिल शाही से मिली मुक्ति स्वराज्य हासिल कर शिवाजी ने किया था सपना वो साकार छत्रपति बने शिवाजी ने सर्वधर्म संभाव का दिया उपहार मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा मातृभूमि से गहरा नाता वीर शिवाजी की ये गाथा. तो आपको कैसा लगा ये सॉन्ग? You let me know in the chat box. So we'll sing again in the end of this class. Okay. So first I will revise with you all I'm going to revise with you all the last lecture what you have studied already. We will do a quick revision of we have studied. So we have studied about the organization. In this lesson we will study organization, but last lesson we studied about the administration of Shivaji Maharaj. So what we studied about the administration, that we came to know from the last lesson that he was a great administrator. He used to administer his territory in a very good way. His territory, his province was called as Swarajya. Okay. So he was a great administrator and he has appointed 8 council of ministers, which is very important. These 8 council of ministers are called Ashtapradhan. Okay. So now अब हमारे क्लास में हमारी टीचर अलग अलग तरह के मॉनिटर्स रखती है, जैसे कि क्लीनलीनेस मॉनिटर्स आप लोग अपॉइंट करते हो, कुछ मॉनिटर्स होते हैं डिसिप्लिन मॉनिटर्स, कुछ होते हैं होमवर्क मॉनिटर्स. ऐसे क्लास को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं मॉनिटर्स में. तो उसी तरह से सिमिलरली शिवाजी महाराज ऑल्सो अपॉइंटेड 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब इन 8 मिनिस्टर्स के पास अलग अलग अपने अपनी जो इम्पोर्टेंट वर्क थे वो बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईमानदारी से, फेथफुली, लॉयली ये करते थे. Now this 8 council of ministers work for the welfare and care for the people. Shivaji Maharaj was the leader of the Marathas.
और उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अलग हूँ, मेरे राज्य से अलग हूँ, मैं राजा हूँ यहाँ का, तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमेशा अपने वेलफेयर के लिए काम किया, अपने टेरिटरी के लिए, टेरिटरी की वेलफेयर के लिए काम किया। और रियायत, रियायत का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स मतलब इंग्लिश मैथ साइंस नहीं, सब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो उनके जो रियायत में लोग थे, कल्टीवेटर्स, फार्मर्स, विलेजर्स, उनके लिए काम करा। फिर हमने लास्ट लेसन में क्या पढ़ा है कि द टेरिटरी ओवर विच शिवाजी रूल्ड वाज कॉल्ड एज स्वराज्य। ओके, अब ये स्वराज्य को किसने विभागा था, डिवाइड किसने किया था? सबसे पहले स्वराज्य को प्रोविंस में डिवाइड किया था। उसके बाद हमारे पास आया परागना, और परागना से विलेजेस आए। ठीक है, ही मेंटेन कांटेक्ट विद कल्टीवेटर्स। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम आवर लेसन कि उन्होंने, जो शिवाजी महाराज इतने बड़े राजा थे, लेकिन वो अपने कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर्स का मतलब होता है जो फार्मर्स होते हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, और उनको लोन देना, लोन की वसूली करना, रेवेन्यू, ये सब उनका फिक्स था। और उनका एक सिस्टम था जो शायद हम आज तक फॉलो करते हैं। उनका सिस्टम इतना बेहतर था, इतना अच्छा था, that we still follow that system, the revenue system, the चौथाई, the सर देशमुखी, it was so well planned. Okay, so वो well planned थे, और उनका हर मूवमेंट, हर जो चीज होती थी वो well planned होती। ओके, सो आज हम लोग ने ये जो ब्रीफ था, हमने रिवाइज करा हमारे लास्ट लेसन के बारे में, विच वाज द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ शिवाजी महाराज। सो शैल वी स्टार्ट विद अवर न्यू लेसन। आप लोगों को न्यू लेसन पढ़ना है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 एन आइडियल रूलर, ये चैप्टर पढ़ेंगे। ये जो है शिवाजी महाराज का रूलिंग सिस्टम कैसा था, ये हमको इस चैप्टर में पता चलेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द स्लाइड शो। आर वी रेडी फॉर द स्लाइड शो? आर एवरीवन रेडी फॉर द स्लाइड शो? ओके, so let us start with the slideshow. Okay, so this is my first class, and I welcome you all to my history class, and I'm so happy to welcome you. And my name is Taranum, as I have said you before. I am Taranum Rais Khan from Love Group Pumping MPS. So this is my slide, and I welcome you all. And first and foremost important thing is that we have to be safe as well as study well. Okay, so next slide. This is our class rules. Just a brief I will go through. We have to listen very carefully because this is the only contact I have with you. Follow the instructions, respecting others, work quietly, study safely, which is very important, arriving on time and being a little bit prepared for the lesson. Okay, next we will see. Yes, so this is the name of our lesson, an ideal ruler. And who is our ideal ruler? Chhatrapati शिवाजी महाराज। आपको सबको स्क्रीन पर उनका जो है पिक्चर दिख रहा है, उनके चेहरे से ही हमको ये ज्ञात होता है कि वो एक आइडियल रूलर थे। ओके, so we will start with our lesson. Everybody pay attention. It is a very interesting and very beautiful lesson. It is all about our great leader Chhatrapati Shivaji Maharaj. Before the foundation of Swaraj, Maharashtra was under the domination of Adil Shahi, Siddhi, Portuguese and Mughal power. Yes, हमारा स्वराज्य स्थापित होने से पहले हमारा जो पूरा महाराष्ट्र राज, क्या पूरा देश ही किसके हाथ में था? आदिल शाही, सिद्धि, पोर्चुगीज और ये जो मुगल पावर थे, इन लोगों के हाथ में था। उसके बाद क्या हुआ? शिवाजी महाराज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट दिस पावर। शिवाजी महाराज ने बहुत मेहनत करी इस पावर के स्ट्रगल करने के लिए, इस पावर के अगेंस्ट। ओके, उसके बाद क्या हुआ? पोर्चुगीज एंड मुगल पावर के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सर्कमस्टेंसेस, बहुत सारे वॉर का सामना करना पड़ा। He faced all kinds of adverse circumstances. Adverse circumstances का मतलब होता है उन्होंने बहुत ही मेहनत से तरह तरह की सीज, आपको पता होगा सीज ऑफ पन्हालगढ़, मुरारबाजी देसाई की जो सेक्रीफाइस थी। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कैसे उनको आगरा में पकड़ लिया था, फिर वहां से एस्केप किया हमारे शिवाजी महाराज ने। तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस का उनको ये करना पड़ा, सामना करना पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे हमारे स्लाइड पे लिखा है कि ही फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरिन स्वराज। उनको क्या मिला लास्ट में? इंडिपेंडेंट मतलब खुद का, और सोवरिन मतलब वो पूरा उस पर रूल कर सकते हैं। स्वराज, स्वराज उनकी जो टेरिटरी का नाम है, जो जिसमें वो अपना रूल करते हैं, उसको बोलते हैं। He set up a system for the administration of this स्वराज। इस स्वराज को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम का यूज करा, उन्होंने एक सिस्टम सेटअप करा। He turned स्वराज्य into a सुराज्य, a kingdom that thinks for the welfare of all.
यस, उन्होंने अपने स्वराज को किसमें बदल दिया, किसमें चेंज कर दिया, सुराज्य। सुराज्य का मतलब होता है एक राज्य, एक राज्य जिसका राजा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, वो राजा किसके बारे में सोचता है, सभी के बारे में, अपने अपने सब्जेक्ट्स मैंने आपको पहले बताया, जो लोग होते हैं किंगडम में उन्हें कहा जाता है सब्जेक्ट्स, मतलब किंग और उनके सब्जेक्ट्स, जैसे टीचर और उनके स्टूडेंट्स, उसी तरह किंग और उनके सब्जेक्ट्स। तो जो राजा होता है वो पूरे वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सोचता है, ना कि सिर्फ वो अपने बारे में सोचता रहता है। बाकी जो राजा मैंने पहले आपको बताया, जो आदिल शाही, सिद्दी, पोर्चुगीज, मुगल, ये सब जो राजा थे ये सिर्फ अपने बारे में सोचते थे और अपने खानदान के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, लेकिन ये सब्जेक्ट्स, मतलब जो उनके राज्य के लोग, जैसे फार्मर्स है, गरीब है कोई, उनके बारे में सोचते नहीं थे। लेकिन जो शिवाजी महाराज एक डिफरेंट रूलर थे, एक आइडियल रूलर कैसे थे कि वो जो थे वो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, अपने रियायत के बारे में भी बहुत ज्यादा विचार करते थे, इसलिए वो स्टैंड आउट होते। स्टैंड आउट मतलब इतने राजाओं में भी जो शिवाजी महाराज है वो सबसे अलग है। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि क्या है। ओके, तो देखिए ये कैसे शिवाजी महाराज जो थे वो राजा थे, लेकिन वो रियायत के लिए टूर पे निकलते थे। टूर का मतलब होता है कि देखना कि हमारे उनके जो किंगडम में क्या चल रहा है उनके किंगडम में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्लाइड? यस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हैड टू डील विद आदिल शाही, निजाम शाही, मुगल्स। मैंने आपको कहा था ये जो पावर थी, ये जो आदिल शाह, निजाम शाह और मुगल्स, ये जो थे, ये इन्होंने जो है जीना मुश्किल कर दिया था, किसका? शिवाजी महाराज का। प्लस जो लोग थे, जो सब्जेक्ट्स थे, जो इंडियंस थे, उनका जो था गुजारा मुश्किल कर दिया था। तो जो ये हमारे शिवाजी महाराज थे, उन्होंने इनके साथ जो है सामना किया इनका। क्यों सामना किया? ताकि हमको एक सुराज्य मिल सके, हमको स्वराज मिल सके, और वो स्वराज को सुराज्य में, मतलब सिस्टमैटिकली, और किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो। देयर शुडंट बी एनी इनजस्टिस टू एनी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। ओके, सो आप लोगों को पता है ये मुगल और आदिल शाही और सिद्दी के साथ डीलिंग किए, डील मतलब उनको फेस किए, उनका सामना किए शिवाजी महाराज ने। ओके, सो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट इज देयर। नाउ लुक एट दिस, लुक एट योर स्क्रीन वेरी केयरफुली। सब लोग स्क्रीन पर देखेंगे। ओके, सो ये देखिए, ये हमारा जो मराठा एम्पायर, साम्राज्य जो है कितना फैला हुआ है। कैन यू सी this our Maratha empire is almost, it was the biggest empire। और ये पूरे एम्पायर के जो किंग थे, कौन थे? हमारे बिलव छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो थे, वो इस एम्पायर के ये इस एम्पायर के किंग थे, राजा थे। और ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे रूल कर रहे थे। 1759 एडी में पूरा मराठा एम्पायर, मराठा साम्राज्य जो था, look how it has spread out to almost whole of India। So our king was such a great king, such a big king। शिवाजी महाराज was such a big king। ये इसी से हमको पता चलता है, क्योंकि जो हमारा मराठा एम्पायर है वो पूरे में किस तरह से स्प्रेड हुआ है। ओके, सो लेट अस लुक एट द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यस, तो मैंने आपको जैसे कहा था कि हम लोग, हमारे जो शिवाजी महाराज है, वो तरह तरह के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा उन्हें। क्यों? टू अटेन स्वराज्य। ओके, सो बिफोर द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, महाराष्ट्र वाज अंडर होम? ये जो अफजल खां है, सिद्दी है, आदिल शाही है, पोर्चुगीज है, इन सब के अंदर था। तो शिवाजी महाराज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आपने देखा होगा ये इंसिडेंट पिछले लेसन्स में, यू माइट हैव नोन अबाउट दिस, हाउ ही मेट विद अफजल खान। एंड उसका जो इंसिडेंट है, आपको मैं नेक्स्ट कभी लेसन में आपको मैं बताऊंगी ये छोटी सी स्टोरी, बट आपने पढ़ा होगा ये अफजल खान की स्टोरी के बारे में। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्या है। ओके, यस, ये तो सबको, ये स्टोरी तो सभी को बहुत इंटरेस्टिंग थी, ये कि उन्होंने शाइस्ता खान को कैसे डिफीट किया, कैसे उसकी 4 उंगली जो थी वो कट गई और शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग गए थे। डिफीटिंग शाइस्ता खान, डिफीटिंग मीन्स व्हाट? making lose शाइस्ता खान the war against स्वराज्य। ओके, सो स्वराज्य हासिल करने के लिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत मेहनत की। उसमें से एक ये भी है कि उन्होंने शाइस्ता खान को कैसे डिफीट किया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे क्या है।
ये है सब सर्कमस्टेंसेस। यस, वेरी इंपॉर्टेंट इज एस्केप फ्रॉम आगरा। आपको सबको पता होगा कि आगरा से हमारे शिवाजी महाराज कैसे फरार हुए थे, कितनी बुद्धि से फरार हुए थे हमारे आगरा से हमारे शिवाजी महाराज। ओके, तो शिवाजी महाराज हमारे आगरा से कितनी चालाकी से फरार हो गए थे, ये सबको पता है। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस जो थे, जो मैं सर्कमस्टेंसेस की बात कर रही थी, यही सारे सर्कमस्टेंसेस थे जो हमारे शिवाजी महाराज को फेस करना पड़ा। सबसे पहले जो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड पे व्हाट यू कैन सी इज द सीज ऑफ पन्हालगढ़। देन यू कैन सी अफजल खान से मीटिंग, देन एस्केप फ्रॉम आगरा, और जो लास्ट है वो है शाइस्ता खान से, जो उनकी ये हुई थी, शाइस्ता खान की 4 उंगली जो शिवाजी महाराज ने काट दिए थे, तो वो है। ओके, तो सबको पता चला अभी ये क्या है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट स्लाइड। ये सब सर्कमस्टेंसेस जो थे वो शिवाजी महाराज को नो दिस इज डिफरेंट वन, एक्स स्क्रीन मैम, अ स्क्रीन बिफोर, ओके आफ्टर दिस अ स्क्रीन। यस, सो हमारे जो शिवाजी महाराज थे, अभी हमने देखा कि किस किस सर्कमस्टेंसेस से उनको गुजरना पड़ा। ठीक है, अब वो सर्कमस्टेंसेस के बाद हम लोग देखेंगे कि शिवाजी महाराज जो थे वो बचपन से ही मावलास के साथ, मावलास मीन्स हु, जो वहां पर रहते थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे जो उनके एरिया में रहते थे, वहां पर कैसे शिवाजी महाराज उनके साथ, हाउ ही यूज्ड टू ईट ऑनियन एंड भाकरी विद दीज मावलास। और इनके जो ये मावलास है, ये जो थे वो उनके ये थे फ्रेंड्स थे, ये जो मावलास थे ये शिवाजी महाराज के फ्रेंड्स थे। और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इतने बड़े राजा का बेटा हूँ, शाहजी राजे का बेटा हूँ, तो मैं इन मावलास के साथ क्यों खेलूं, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। और वो इनके साथ पूरी तरह से मिक्स होके और इनके साथ खेलते थे, और उनके साथ चटनी भाकरी जो है, ऑनियन भाकरी, जो उनका स्टेपल डाइट था वहां के लोगों का, वही खाते थे। बिल्कुल भी राजा के जैसा उन्होंने कभी भी बिहेव नहीं किया, नेवर बिहेव लाइक अ किंग विद देम, ही ऑलवेज सेट विद देम, सेट डाउन विद देम, उनके साथ खेल खेले उन्होंने। ठीक है, तो लेट अस सी नेक्स्ट स्लाइड। और यही मावलास ने उनको बहुत सपोर्ट किया। यस, अनपैरेलल ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स ऑफ शिवाजी महाराज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो शिवाजी महाराज की जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल थी वो अनपैरेलल थी। महाराज जो थे वो, महाराज इंस्पायर्ड पीपल अराउंड हिम टू वर्क फॉर द स्वराज। महाराज जब मावलास के साथ थे तो मावलास ने देखा कि महाराज जो है वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं सब चीज में, तो जो मावलास थे वो भी आगे जाके लॉयल और फेथफुल सर्वेंट साबित हुए। हिज ऑर्गेनाइजेशन स्किल वाज अनपैरेलल्ड। अनपैरेलल्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अनपैरेलल्ड? मतलब उनके जैसा कोई भी ऑर्गेनाइज कर नहीं सकता इस पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्किल आज भी जो है, स्टिल नाउ वी लर्न फ्रॉम हिज ऑर्गेनाइजेशन स्किल। 1759 एडी, मतलब कितना पुरानी बात है, अभी क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। तो इतने साल पहले भी जो हमारे एक विलव लीडर थे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, विद दिस स्किल ही ड्रू अराउंड हिमसेल्फ ब्रेव पीपल। ये सब जो खड़े हैं, जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब इनके लॉयल सर्वेंट्स, सभी उनके सर्वेंट्स क्या थे, लॉयल थे। और क्लोज एसोसिएट्स, क्लोज मतलब बहुत क्लोज थे, शिवाजी महाराज के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। they were ready to sacrifice their lives for Shivaji Maharaj as well as for Swaraj, attainment of Swaraj. Swaraj के लिए these close associates of Maharaj performed their duty. उन्होंने अपना ड्यूटी, अपना कार्य जो भी उनको दिया गया था वो इतनी लॉयली और इतनी फेथफुली किया कि इवन बाय रिस्किंग देयर ओन लाइव्स। ये जो मावलास जो अभी आपको मैंने एक्स स्क्रीन में दिखाया, पहले की स्क्रीन में, उसमें ये जो मावलास थे ये बड़े होकर जो शिवाजी महाराज के इतने क्लोज एसोसिएट्स बन गए। ये जो आप लोग दिख रहे हैं एक्स स्क्रीन में, कि जो मावलास थे यही जो थे ये फेथफुल और लॉयल सर्वेंट्स बने। सर्वेंट्स नहीं कहेंगे, एसोसिएट्स कहेंगे, एसोसिएट्स बेटर रहेगा। तो ये क्योंकि उन्होंने, हमारे सर्वेंट्स हमारे लिए कभी जान नहीं देते, लेकिन ये जो मावलास थे इन्होंने जान देने के लिए भी ये शिवाजी महाराज के लिए रेडी थे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, लेट अस सी। यस, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के बारे में अभी हम लोग, हमारे शिवाजी महाराज, अभी हम लोग उनसे कुछ सीख भी सकते हैं, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल थी। सब लोग ध्यान देंगे स्क्रीन पर। ओके, महाराज इंस्पायर्ड द पीपल अराउंड हिम टू वर्क फॉर द स्वराज। महाराज ने क्या किया, महाराज सिर्फ खुद ही नहीं काम कर रहे थे। एक अच्छा लीडर क्या होता है, जो आसपास के उसके लोग होते हैं उनको भी इंस्पायर करते हैं महाराज।
कि वर्क फॉर द स्वराज, स्वराज के अटेनमेंट के लिए काम करेंगे हम लोग। ये बैटल जो भी तैयारी होती है वो सबके साथ मिलकर करते थे। सिर्फ अकेले ये नहीं सोचते थे महाराज कि मैं राजा हूँ और मैं अकेले तैयारी करूंगा और सब जो है मेरा बात सुनेंगे। वो सब मिलकर प्लान करते थे। राजा जो थे अपने एसोसिएट्स के साथ मिलकर प्लान करते थे। His organization skill was unparalleled. उनका जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल था, जिस तरह से वो काम करते थे, वो कोई भी उसका पैरेलल नहीं, मतलब ऐसा कोई हुआ ही नहीं आज तक इंडिया में, वर्ल्ड में कोई नहीं हुआ जो इनका ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स इतना अच्छा था, इतना बेहतर था। ओके, विद दिस स्किल ही ड्रीव अराउंड हिमसेल्फ ब्रेव पीपल हु वर आल्सो एक्सट्रीमली लॉयल। अब जो ये लोग थे, ये जो आसपास के जो लोग थे एसोसिएट्स, शिवाजी महाराज के एसोसिएट्स अनफेथफुल डिसलॉयल नहीं थे, बिल्कुल फेथफुल और लॉयल तरह के लोग थे। ठीक है, वो लोग शिवाजी महाराज के जान भी दे सकते थे, स्वराज्य के लिए जान दे सकते थे। वो लोग समझते थे, वो लोग दे अंडरस्टूड दैट हाउ इम्पोर्टेंट स्वराज इज फॉर आवर कंट्री। ओके, विद दिस स्किल मतलब कौन सा स्किल? एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्किल। ही ड्रीव अराउंड हिमसेल्फ ब्रेव पीपल who were also extremely loyal. शिवाजी महाराज के इसी स्किल की वजह से क्या हुआ, उन्होंने आसपास में कौन लोग उनके आ गए? ब्रेव मतलब जो बहादुर लोग थे वो उनके आसपास थे शिवाजी महाराज के, डरपोक लोग नहीं। एंड वो बहादुर लोग जो थे, they were also extremely loyal and faithful. They used to listen to शिवाजी महाराज and work accordingly. These close associates of Maharaj performed their duty even by risking their own lives. ये जो क्लोज एसोसिएट्स थे हमारे, ये इन्होंने पूरी ईमानदारी से स्वराज्य के अटेनमेंट में शिवाजी महाराज का पूरा साथ दिया। और इसके साथ साथ वो कभी नहीं सोचे कि हमको हमारी जान की बलि देनी पड़ेगी। ओके, इवन रिस्किंग देयर ओन लाइव्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके उनकी सेक्रीफाइस, उनकी शहीद होने के बिना हमको ये स्वराज्य अटेन कभी नहीं होता था। उसके बाद देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ दिस इन द फाउंडिंग ऑफ स्वराज। फॉर एग्जाम्पल जीवा महला, आपको पता है ना, जीवा महला ने जान दिया था, इसलिए हमारे पास वो एक सेइंग है, था जीवा तो बचा शिवा, था जीवा तो बचा शिवा। यस, जीवा महला ने शिवाजी महाराज की जान बचाई थी। उसके बाद हु किल्ड बड़ा सैयद एट अ क्रिटिकल मोमेंट। जीवा महला ने क्या किया था? बड़ा सैयद जो था हमारे शिवाजी महाराज पे अटैक करना चाहते थे, तो शिवाजी महाराज को बचाने के लिए जीवा महला आगे आ गए। इसलिए हमारे को ये सेइंग मिला है, था जीवा तो बचा शिवा, था जीवा तो बचा शिवा। उसके बाद हम क्या, और दूसरा क्या है, ड्यूरिंग द मीटिंग विद अफजल खान। अफजल खान के मीटिंग के लिए जो बड़ा सैयद था वो अफजल खान का बॉडीगार्ड था, तो उन्होंने शिवाजी महाराज के ऊपर अटैक करा था, तो जीवा महला आके शिवाजी महाराज को बचाए थे। इसलिए हम लोगों को सबको पता है, था जीवा तो बचा शिवा। ओके, नेक्स्ट है शिवा काशिद who crossed the siege of पन्हालगढ़ in the disguise of शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का भेष बदल कर शिवा काशिद जी ने क्या कहा? पन्हालगढ़ को क्रॉस किया। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड भी इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू हम लोग पढ़िए। देखिए, आप लोग इस स्लाइड्स में देख सकते हैं, इट इज सच एन इंटरेस्टिंग, कलरफुल हमको पता चला है। फर्स्ट वाला जो है वो है हमारा शिवा काशिद जी है, जो डिस्गाइज का मतलब होता है शिवाजी महाराज का भेष बदल के उन्होंने सीज ऑफ पन्हालगढ़, वो पन्हालगढ़ पे फतेह हासिल करी थी। उसके बाद हमारे मोरारबाजी देसाई है, तानाजी मालुसरे है, ठीक है, और ये सब जो लोग हैं उन्होंने, और ये हमारे जो है जो आप फर्स्ट स्लाइड देख सकते हो, फर्स्ट जो ये लेफ्ट हैंड साइड से, ये है मदारी मेहतर। ओके, तो ये मदारी मेहतर ने भी बहुत मदद करी शिवाजी महाराज की। ये सब हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, लेकिन आपको और इसके बारे में मैं आपको, ये हम लोग ने लास्ट में पढ़ चुके। ओके, अफजल खान मीटिंग में जीवा महला जी ने जो थे वो फॉट विद बड़ा सैयद। ओके, शिवाजी काशिद जो फर्स्ट आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, वो है वो डिस्गाइज्ड एज शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जो है भेष बदल के शिवा काशिद आ गए। और उसके बाजी प्रभु देश पांडे आस्क्ड शिवाजी टू गो अहेड एंड आई विल फाइट विद द आर्मी। क्या कहा था बाजी प्रभु में? तो ये सब क्या थे? लॉयल एसोसिएट्स थे, ये शिवाजी महाराज के लॉयल एसोसिएट्स थे। बाजी प्रभु ने क्या किया कि आप आगे जाओ शिवाजी, मैं इन लोगों से फाइट करूंगा, और बाजी प्रभु ने अपनी जान गंवा दी, सेक्रीफाइस कर दी। ओके,
और पुरंदर का फोर्ट लड़ने के लिए बाजी प्रभु ने, ओके। और फाइटिंग फॉर पुरंदर फोर्ट कौन थे? मोरारबाजी देसाई जो थे वो पुरंदर के फोर्ट के। और कोंडाना फोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री का, हिस्टोरिकल हिस्ट्री में हमको हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में ये बहुत ही हमको क्या कहते हैं ना, बहुत सैड फीलिंग होती है कि तो जो तानाजी मालुसरे थे, ओके, और वो फाइट करते करते उन्होंने अपनी जान गंवा दी, वो सैक्रिफाइस कर दिए, ठीक है। और ये सब जो थे ये सब लॉयल एसोसिएट्स थे। आप लोग देख रहे हो ये हिरोजी फर्जंद और मदारी मेहतर, ये जो थे वो ट्रिक आगरा में, और शिवाजी महाराज की जगह वो ले लिए, और शिवाजी महाराज इसलिए एस्केप कर सके फ्रॉम आगरा। हिरोजी फर्जंद और मदारी मेहतर जो थे इन्होंने भी बहुत मदद करी, और उन्होंने अपनी जान लगा दी। उन्होंने ये जरा भी नहीं सोचा कि एक तलवार से हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग को की जान चली जा सकती है। एनिमीज की एक तलवार से, एक घाव से, एक वार से हम लोग मर सकते हैं। बट दीज पीपल वर लॉयल एंड दीज पीपल वर आल्सो सो फेथफुल कि उन्होंने अपनी जो सेक्रीफाइस थी वो स्वराज के लिए दे दी। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्लाइड? यस, देखिए अभी ये सब मैं आपको लास्ट आपको सिखाया पढ़ाया। देखते हैं हम लोग क्या है। बाजी प्रभु देशपांडे who blocked the advances of the enemy on the way to विशालगढ़। विशालगढ़ जाने से पहले ही बाजी प्रभु देशपांडे ने उन सभी को रोक लिया। मुरारबाजी देशपांडे who defended the fort of पुरंदर। पुरंदर के फोर्ट को डिफेंड कौन कर रहे थे? हमारे बिलव्ड मुरारबाजी देशपांडे। उसके बाद तानाजी मालुसरे जिनका जो इवेंट है हिस्ट्री में बहुत ही सैडली देखा जाता है क्योंकि उनका डिमाइस हो गया, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, वो शहीद हो गए वाइल कॉन्करिंग सिन्हागढ़। ये तानाजी मालुसरे ने अपना लाइफ जो था सेक्रीफाइस कर दी, कभी कॉन्करिंग करते हुए सिन्हागढ़ का फोर्ट तो मिल गया हमें, लेकिन हमें हमारा जो लायन था जो तानाजी मालुसरे वो हमको गंवाना पड़ा। उनका जो इवेंट है जो हिस्ट्री में बहुत ही सैड है। ओके, नेक्स्ट हमको दिखता है कि हिरोजी फर्जंद और मदारी मेहतर, ये दो लॉयल एसोसिएट थे शिवाजी महाराज के, वो आगरा में जाकर शिवाजी महाराज की जगह लेट गए। तो लोगों को क्या लग रहा था, जो सोल्जर्स को क्या लग रहा था, एनिमी को ये लगा कि जो ये है ये शिवाजी महाराज ही है और संभाजी है, और लेकिन ये कौन थे? हिरोजी फर्जंद एंड मदारी मेहतर, ये दो इंसान थे। और शिवाजी महाराज का एस्केप तो सबको पता है, कितना इंटरेस्टिंग एस्केप था आगरा से। तो शिवाजी महाराज वहां से और संभाजी वहां से एस्केप हो गए, और उनकी जगह कौन ले लिया? हिरोजी फर्जंद एंड मदारी मेहतर। Now you look at this, that none of these people were fearful of their lives कि क्या होगा अगर एनिमी ने हमको पकड़ लिया, हमको तो मार डालेंगे एनिमीज। बट दे वर नॉट fearful, उनके दिल बहुत ब्रेव थे, बहुत बहादुर थे ये सभी लोग। उसके बाद हमको पता चलता है महाराज टू ग्रेट केयर ऑफ हिज एसोसिएट्स। ये तो बात सही है कि महाराज ने अपने एसोसिएट्स मतलब ये सब नाम और भी बहुत सारे नाम और भी सारे सोल्जर्स, सारे मावलास जो थे उनकी बहुत केयर करते थे महाराज, इसलिए तो इतने नजदीक थे, इसलिए तो इतने जो मावलास थे और जो दूसरे एसोसिएट्स थे वो भी तो इसलिए इतने ही लॉयल थे ना हमारे महाराज से, बिकॉज महाराज इज टू टेक ग्रेट केयर ऑफ हिज एसोसिएट। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताती हूँ। कान्होजी जेडे ये एसोसिएट थे महाराज के, शिवाजी महाराज के। इन द वर्क फॉर स्वराज, जब वो स्वराज के लिए काम कर रहे थे तो वो बहुत बीमार हो गए, ठीक है। तो किल महाराज टोल्ड हिम नॉट टू नेग्लेक्ट हिज मेडिसिन और ट्रीटमेंट और एनी अकाउंट। महाराज ने कहा क्या कहा उनसे कि अभी आप आराम कीजिए और अपनी मेडिसिन को निग्लेक्ट मत कीजिए। मतलब महाराज ने ऐसे नहीं किया, नहीं आप आर्मी में आप सोल्जर हो, आपको काम करना ही पड़ेगा, तो आना ही पड़ेगा वॉर में, तो ऐसा नहीं किया। क्योंकि कान्होजी जेडे बहुत बीमार हो गए थे, इसलिए शिवाजी महाराज ने उनको क्या एडवाइस दी कि आप जो है आराम करिए और अपनी मेडिसिन और ट्रीटमेंट का पूरा ध्यान रखिए। शिवाजी महाराज स्ट्रिक्ट, अब हमको पता चलता है कितने जेनरस थे शिवाजी महाराज। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे क्या है हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं वो देखेंगे। यस तो ये इसी तरह से जो एसोसिएट्स थे एनिमीज का सामना करते थे, दे यूज्ड टू फॉट ऑन द बैटल ग्राउंड विदाउट वरिंग, विदाउट फियरिंग अबाउट रिस्किंग देयर लाइफ्स। उनको पता था हो सकता है बैटल ग्राउंड मतलब युद्ध भूमि में से हो सकता है कि हम लोग वापिस ना आए, है ना। जो उनके एसोसिएट्स थे जिसका नाम मैंने लिया, जैसे कि
बाजी प्रभु देश पांडे है, मोरारबाजी देसाई है, तानाजी मालुसरे और बहुत सारे सोल्जर्स और मावलास हु वर इन हिज आर्मी एंड कैवलरी. तो दे नेवर यूज्ड टू थिंक अबाउट कि हम लोग घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे. दे नेवर used to, for Swaraj he got support from various people, although these people were ready to sacrifice their lives for Swaraj. Okay, क्योंकि he was the son of शाहजी, लेकिन वो कभी ऐसा उन्होंने बताया नहीं that he was different. उन्होंने कभी सभी के साथ एडजस्ट हो गए हमारे शिवाजी महाराज. एंड नेवर ही सेड एनीबडी कि मैं डिफरेंट हूँ. उन्होंने कभी रियलाइज ही नहीं कराया मावलास को या एसोसिएट्स को दैट आई एम किंग और आप लोग एसोसिएट हो. ऐसे कभी भी मावलास को उन्होंने रियलाइज नहीं कराया. इस वजह से जो उनके एसोसिएट भी थे वो उनके लिए बहुत फेथफुल थे, लॉयल थे, एंड दे वर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइफ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर शिवाजी महाराज. They never thought about their family. They thought that for Swaraj we have to sacrifice our life. And later in life, जब वो मावलास बड़े हो गए तो वो ही मावलास उनके एसोसिएट्स भी बन गए. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है. ओके, सो ये है हमारे ग्रेट शिवाजी महाराज. ठीक है, ये उनका स्टैचू है और हम लोग ये हमारा जो 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री है ये पूरा हमारे शिवाजी महाराज के बारे में ही है. ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड. Let us look at the next slide. Yes, now this is the most important part of the lesson, that how he used to care for the Rayat. RYOT. रायत का मतलब होता है हमारी जनता, जो प्रजा. एक राजा होता है उसकी प्रजा होती है. ओके, रायत. और जो टीचर होती है उसके स्टूडेंट्स होते हैं. जैसे मैं टीचर हूँ, आप सब स्टूडेंट्स हो, वैसे राजा के कौन होते हैं? रायत होती है. RYOT, रियायत. तो कैसे वो अपने प्रजा की, जो जनता की कैसे सेवा करते थे, ये हम लोग अभी देखेंगे हमारे स्लाइड्स में. While establishing स्वराज, महाराज had to constantly struggle against his enemies. जब उनको स्वराज एस्टेब्लिश करना था तो महाराज को कॉन्स्टेंटली, जैसे मैंने आपको बताया था, जो सिद्दी, पोर्चुगीज, मुगल्स, ये सभी उनके एनिमीज थी. ये सभी सोचते थे कि कैसे ना कैसे करके हम जो है कब्जा कर ले, हम जो है ये सब चीज पे कब्जा कर ले. लेकिन महाराज ने क्या किया? कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करा इन सब के अगेंस्ट. हिज सब्जेक्ट्स सफर ड्यू टू एनिमी इन्वेजन्स. यस, हिज सब्जेक्ट्स मतलब उनके जो प्रजा थे, एनिमी इन्वेजन्स मतलब लूटमार, जो लूटमार करते थे, जो सिद्दी, पोर्चुगीज, आदिल शाही, निजाम शाही, ये लोगों का लूटमार चालू था. तो उस वजह से जो उनकी प्रजा थी उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सफरिंग झेलनी पड़ी. Lot of suffering due to the enemy invasions. Okay, at such times Maharaj used to take utmost care to protect the riot. लेकिन महाराज जो थे हमारे बहुत केयर करते थे. किसके लिए? अपनी रियायत के लिए. महाराज ने वैसा नीति नहीं अपनाई जो उनके एनिमीज करते थे. कैसे राजा? रायत के राजा थे. रायत का, अपनी प्रजा का, अपने सब्जेक्ट्स का अच्छा सोचने वाले राजा थे. At the time of Shaista Khan's campaign, Maharaj warned the Deshmukh of the Rohit Valley not to fail in his duty towards the riot. जब शाइस्ता खान का कैंपेन हो रहा था तो महाराज ने क्या वार्निंग दी देशमुख को? देशमुख मतलब जो एरिया के लीडर होते हैं, कि वो अपनी ड्यूटी में फेल नहीं होंगे, मतलब वो अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे. ओके, अभी हम देखेंगे कि उन्होंने क्या उन्होंने वार्निंग दी देशमुख. लेट अस सी व्हाट वार्निंग he has given to देशमुख. Let us see next slide में. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि उन्होंने हमारे जो देशमुख थे उसको, यस देखो ये देशमुख है और ये खड़े रह के सुन रहे हैं कि उन्होंने जो है वो क्या अपने इंस्ट्रक्शंस दिए देशमुख को. नेक्स्ट स्लाइड में वी विल सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. यस, नाउ सी कि उन्होंने देशमुख को क्या कहा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस लेसन कि देशमुख को उन्होंने क्या वार्निंग दिया था. He told देशमुख to visit every village and shift people to a safe place down the ghats. जब शाइस्ता खान से उनका जो ये था, जो बैटल थी, उसको करने से पहले उन्होंने देशमुख को क्या वार्निंग दी कि टू विजिट एवरी विलेज, हर एक विलेज को उनको जाना है और शिफ्ट करना है बच्चे नहीं, लोगों को, प्रजा को, कहा? सेफ प्लेस डाउन द घाट्स. कहीं दूर ले जाके सेफ प्लेस, मतलब जो प्लेस पे उनको खतरा ना हो वहां जाके दे शुड बी प्लेस. He strictly told them not to delay even for a moment. What did he tell the Deshmukh? Not to delay, don't do any late and just go for it, and not even for a moment. Shift the people from the valley to the ghats, from the village to the ghats.
ही फर्दर वार्नड, मतलब उन्होंने आगे और नोटिस क्या दी उनको, देशमुख को, दैट इफ ही डिड नॉट take care of the riot, the Mughal army will take the people as a prisoner and then it will be seen as a Deshmukh's doing. क्या कहा कि अगर आगे से उन्होंने ऐसा नहीं करा जैसे उन्होंने कहा है, जैसे शिवाजी महाराज ने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इफ ही फेल्स टू डू हिज ड्यूटी, तो क्या होगा, मुगल आर्मी जो है वो उनको प्रिजनर बना लेगी, प्रजा को, उनकी प्रजा को, शिवाजी महाराज की प्रजा को प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब क्या होता है, कैदी। मुगल आर्मी शिवाजी महाराज की प्रजा को प्रिजनर बना लेगी और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, देशमुख की। यस, उन्होंने ऐसा कहा कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ये देशमुख की होगी। Also Maharaj saw to it that no soldiers in any way cause any harm to the riot. शिवाजी महाराज ने अपनी प्रजा के बारे में इतना सोचते थे कि he also saw to it कि soldiers did not cause any harm to the प्रजा, तो जो उनके सब्जेक्ट्स थे, उनके जो कल्टीवेटर्स, गरीब लोग जो थे, उनको सोल्जर्स की तरफ से किसी भी तरह का हार्म, किसी भी तरह की हानि ना पहुंचे। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ ही वार्नड द देशमुख। देशमुख को उन्होंने क्या वार्निंग दी कि हर एक विलेज में जाएंगे और शाइस्ते खान से बैटल होने से पहले वी विल गो टू ईच एंड एवरी विलेज एंड वी विल शिफ्ट पीपल टू अ सेफ प्लेस डाउन द घाट्स। वी विल शिफ्ट पीपल टू अ सेफ प्लेस डाउन द घाट्स। He strictly told him not to delay even for a moment. एक भी पल का हमको ये नहीं करना है, ओके, हमको एक भी पल का रुकना नहीं है और हम लोग क्या करेंगे, डिले नहीं करेंगे और लोग बच्चों को ये जो विलेजर्स है उनको एक सेफली जगह पे हम लोग रख देंगे। He further warned, मतलब उन्होंने आगे और क्या उनको वार्निंग दी कि अगर उन्होंने अपनी ड्यूटी में फेल हो गए, मतलब अगर जो मैंने कहा वो आप लोग नहीं करोगे, देशमुख नहीं करेंगे, तो मुगल आर्मी विल टेक द पीपल प्रिजनर एंड दैट इट वुड बी सीन एज अ देशमुख टीम। और ये किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी, देशमुख के ऊपर ही जिम्मेदारी आएगी। लोग प्रिजनर बन जाएंगे तो ये देशमुख की जिम्मेदारी है। महाराज ऑल्सो सॉ टू इट दैट नो सोल्जर्स डू एनी हार्म टू द रियायत। रियायत के लिए महाराज ने ये भी देखा कि कोई भी सोल्जर कुछ भी गलत नहीं करेगा हमारे रियायत के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये देखिए शिवाजी महाराज हम सबको दिख रहे हैं, जो ये इनके पीछे जो एसोसिएट्स है, दे वर सो मच विथ शिवाजी महाराज। ओके, तो आपको सबको पता है ना, हर हर महादेव, वो लोग कहते थे हर हर महादेव कहकर जो है बैटल ग्राउंड में उतर जाते थे। तो ये उनका जो था, ये शिवाजी महाराज के साथ बहुत ही फेथफुल रिलेशन रहा है, बहुत ही लॉयल रिलेशन रहा है टू शिवाजी महाराज। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। Okay, now very important, this part of the lesson is what was the policy of Shivaji Maharaj regarding the army, like how he used to train his army। ये उनकी आर्मी थी और ये दिख रहा है हमको कि वो आर्मी में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखते थे। ओके, कैन यू सी, वो आर्मी में जो अपने आर्मी थी उनकी, शिवाजी महाराज के आर्मी में वो शिवाजी महाराज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द आर्मी, ही यूज्ड टू मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द आर्मी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। we will talk more about the army now. Next slide. Look onto your screen, students. We will see the next slide. Yes, सबसे important बात जो revolution शिवाजी महाराज ने लाया है, change the salary system of the soldiers and hence brought revolution. Okay, तो शिवाजी महाराज what did he do? He changed the salary system. Earlier what the soldiers used to get a part of the loot, मतलब जो soldiers के group में जितने ज्यादा लूट मचाई, जितने ज्यादा इन्वेजन्स किया, तो वो ज्यादा इन्वेजन्स करने पे उनको वही जो था वही सैलरी मिलती थी राजा की तरफ से। मतलब आदिल शाही के टाइम, मोगल्स के टाइम, पोर्चुगीज के टाइम, द सोल्जर्स यूज्ड टू गेट एज अ सैलरी द पार्ट ऑफ इन्वेजन, जो लूट मार का जो पैसा होता था वही उनको सैलरी मिलता था। लेकिन बट शिवाजी महाराज स्टॉप दिस प्रैक्टिस। देखो हमको इससे पता चलता है हाउ जेन्युइन लीडर आवर लीडर वाज, हाउ सो जेन्युइन कि उन्होंने ये प्रैक्टिस खत्म कर दी और वो जो सोल्जर्स थे उनको सैलरी सिस्टम पे रखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ही ब्रॉट अ रेवोल्यूशन बाय डूइंग दिस, कि उन्होंने जो हमारे जो सोल्जर्स थे उनको सैलरी कर दिया। सैलरीड मतलब कैसे कर दिया कि हर महीने उनको सैलरी मिलती थी एज अ कैश या तो फिर कुछ प्रोडक्ट के तौर पे उनको सैलरी मिलती थी। लेकिन
ये जो लूट मार का पैसा था जो पहले मिलता था वो शिवाजी महाराज ने वो बंद कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। ओके, गिव इंसेंटिव्स एंड ऑल्सो ऑनर्ड आवर ब्रेव सोल्जर्स। इसके साथ साथ शिवाजी महाराज ने इंसेंटिव्स दिया एंड ऑल्सो गिव ऑनर्ड ब्रेव सोल्जर्स, जो सोल्जर्स जो लॉयल थे और बैटल ग्राउंड में बहुत ब्रेव बहादुर थे, उनको इनाम दिया करते थे, उनको प्राइज दिया करते थे, ऑनर कर दिया करते थे हमारे शिवाजी महाराज। ओके, अब दूसरा हम लोग ये देखेंगे कि जो शिवाजी महाराज जो फैमिली ने अपना कोई बिलव्ड खोया है बैटल में, तो उनकी भी टेक केयर कौन करते थे? हमारे बिलव्ड छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी भी केयर करते थे। उनके जो अगर बैटल में कोई सोल्जर शहीद हो गए तो उनकी फैमिली की केयर भी हमारे शिवाजी महाराज करते थे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। ओके, नाउ हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इस बारे में, पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी। महाराज मेंटेन्ड अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द आर्मी। जैसे मैंने आपको बताया वो बहुत डिसिप्लिनेरियन थे, वो अपने आर्मी में पूरा स्ट्रिक्टली मेंटेन करते थे डिसिप्लिन। ही वाज पर्टिकुलर अबाउट पेइंग द सैलरीज ऑफ द आर्मी इन टाइम। ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट पेइंग द सैलरीज, जो सैलरीज थी वो टाइम पर दिया करते थे। ही मेड अरेंजमेंट्स टू पे द सैलरी ऑफ सोल्जर्स इन कैश। यस, जैसे मैंने आपको बताया अर्लियर, क्या होता था, पेमेंट कैसे होती थी? फॉर्म ऑफ जागीर या लूटमार का जो पैसा था वो दिया जाता था। बट शिवाजी महाराज ने क्या किया, एक नया रास्ता अपनाया था, नया आइडिया, नया ऑर्गेनाइजेशन स्किल। जो हमको पता चला कि शिवाजी महाराज वॉज एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजर, तो उन्होंने क्या ऑर्गेनाइज किया था कि जो सोल्जर्स है, हाउ विल दे गेट देयर सैलरीज? एज अ पार्ट ऑफ कैश। ओके, उनको कैश मिलेगा हर मंथ। लेकिन दूसरे किंगडम्स में, इन वेरियस किंगडम्स इन मिडिवल इंडिया एंड एल्सवेयर, एल्सवेयर का मतलब होता है दूसरी जगहों पर, there was a system of making payments through in the form of जागीर, या तो फिर लूट का जो पैसा होता था वो मिलता था। इसलिए जो सोल्जर ज्यादा लूट करेंगे उनको उतना पैसा मिलेगा। महाराज सेट दिस प्रैक्टिस असाइड। महाराज ने क्या किया, इस प्रैक्टिस को, इस प्रथा को बंद किया। ठीक है, तो वो कैसे देने लगे? उन्होंने कैश में प्राइस देने लगे। सो लेट अस सी द नेक्स्ट स्क्रीन। यस, ये थी उनकी प्रजा और वो सभी का ध्यान रखते थे, इवन छोटे से छोटे कल्टीवेटर्स, फार्मर्स, सभी का शिवाजी महाराज सबका नोंद रखते थे, सबका पॉइंट रखते थे, सबको बोलने का और सबको प्रोग्रेस करने का पूरा अवसर मिलता था, पूरा अपॉर्चुनिटी मिलती थी उनके राज्य में, साम्राज्य में। साम्राज्य कहा जाएगा, राज्य नहीं, साम्राज्य, क्योंकि इतने बड़े राज्य के, जैसे हमने वो मैप में देखा था, इतना बड़ा उनका स्वराज्य जो था, उनका स्प्रेड है, तो वो बड़े सम्राट लीडर थे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, इसके बारे में हम लोग और नेक्स्ट जो लेसन है पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ रीड कर देती हूँ। महाराज है टू स्ट्रगल अगेंस्ट हिज एनिमीज। कौन कौन थे एनिमीज? आपको सबको अभी याद हो गया होगा अभी तक, आदिल शाह, मुगल्स और सिद्दीज, और ये सब जो थे इस्लामिक पावर थे। लेकिन महाराज ने कभी ये नहीं सोचा कि हम जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट है। महाराज वॉज वेरी टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब होता है सभी धर्म को एक नजर से देखने वाला राजा। While Maharaj struggled against them, he considered the Muslims in Swaraj as his own subjects. At the time of meeting with Afzal Khan, कौन था? सिद्दी इब्राहिम was a trusted servant in his army. सिद्दी हिलाल भी जो थे सरदार थे आर्मी में। तो ये जो दो थे, ये मुस्लिम से, महाराज ने कभी उनको डिफरेंशिएट नहीं किया। ओके, दौलत खान वॉज एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर इन द नेवी ऑफ स्वराज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे, वी विल सी नेक्स्ट स्लाइड एंड आई विल आल्सो टीच यू। ये सब जो टॉलरेंस है, रिलीजियस टॉलरेंस, फ्रॉम वेयर डिड शिवाजी गॉट दिस? फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ जीजाबाई। जो उनकी मम्मी थी, देख रहे हैं आपको स्लाइड पे दिख रहा है? तो शिवाजी महाराज की जो मम्मी थी, मदर थी, उनका नाम था वीर माता जीजाबाई। तो ये जो थी, ये इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज सुनाया करती थी हमारे शिवाजी महाराज को। तो इसी स्टोरीज की वजह से, इन्हीं स्टोरीज के कारण, बाय लिसनिंग टू दिस स्टोरीज, शिवाजी महाराज बिकेम अ टॉलरेंट लीडर। वो रिलीजियसली सबको टॉलरेट करते थे, रिलीजियसली वो सभी को एक नजर से देखते थे। और उनका ये मानना था कि धर्म से बड़ा, हमारे देश से बड़ा, देशभक्ति से बड़ा धर्म नहीं होता। ठीक है, देशभक्ति सबसे पहले होती है, सबसे आगे होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये देखिए सिद्दी इब्राहिम और सिद्दी हिलाल जो थे, मैंने आपको पहले बताया, ये पार्ट ऑफ द आर्मी थे और इनको, ये हमारी आर्मी में थे, ये बैटल ग्राउंड पे जाते थे लड़ने के लिए और ये बहुत लॉयल सर्वेंट्स थे हमारे
शिवाजी महाराज की। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग। यस, और ये जो थे रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, आपको पता है पहले भी हमने ये पढ़ा था लास्ट लेसन में कि जब उनको कोई बैटल ग्राउंड पे या इन्वेजन्स के टाइम अगर कोई ग्रंथ मिलता था, कोई इस्लामिक ग्रंथ या कोई भी रिलीजियस का जो बुक्स मिलती थी, तो वो जाकर उनके जो रिलीजियस लीडर को उनके हाथ में रिस्पेक्टफुली दे देते थे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्लाइड? ओके, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द लेसन दैट आई एम फिनिशिंग नाउ। ओके, सो ये हमारा होम, ये जो हमारा होमवर्क है। ओके, सो ये होमवर्क है हमारा। शिवाजी महाराज, कैन यू हियर एवरीवन? ओके, शिवाजी महाराज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट होम, ये चारों आपको पता ही है, मैं भी आपको रिवाइज नहीं करूंगी, आई थिंक सो एवरीबडी नोज दिस। और मुस्लिम्स इन द आर्मी ऑफ शिवाजी महाराज, जो अभी हमने पढ़ा, जस्ट नाउ वी स्टडीड, एक तो दौलत खान थे और वो जो 2 जन थे वो कौन थे, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। सबसे फर्स्ट होमवर्क क्या आपका? शिवाजी महाराज ने किस पावर्स के अगेंस्ट 4 ली, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आपको चारों ऑप्शन में आपको करना है। दूसरा है मुस्लिम्स इन द आर्मी ऑफ शिवाजी महाराज, कौन कौन मुस्लिम थे शिवाजी महाराज के आर्मी में, आपको ये 2, एक नाम आपके लिए लिखा हुआ है दौलत खान, और आई थिंक सो दूसरे 2 नाम भी सबको पता ही होंगे। ओके, okay, so shall we end this part of the lesson? This is our part 1, we will be doing part 2 soon. Okay, तो आप लोगों को क्या कुछ डिमांड है, कुछ पूछना है आप लोगों को, तो आप पूछ सकते हैं। Does anybody who have any questions and any doubts, any queries? किसी के पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है आप लोगों को मुझे, कुछ इस लेसन से रिलेटेड, relevant to the topic? Does anybody wants to answer question, or should I sing the song again for you? If you want me to sing the song, then tell me in the chat box that you want me to sing the song. Okay? Yes, teacher. Okay, so सब लोग ने unmute करके yes बोल। Yes, ma'am. Okay, please sing the song from Kusum. Kusum, okay? I will sing the song. आपको chat box में आप मुझसे बात कर सकते हो, आपको जो भी क्वेश्चंस है, अगर कुछ रिलेटेड टू द टॉपिक कुछ पूछना है। हम लोग नेक्स्ट जब आएंगे आइडियल रूलर पार्ट 2 में, आई विल रिवाइज ऑल दिस स्लाइड्स एंड आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो चैप्टर यहाँ खत्म नहीं हुआ, चैप्टर स्टिल लेफ्ट, और हमारे ऑनलाइन क्लास के रूल्स आपको पता है, यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर द लेसन, यू हैव टू रीड लिटिल बिट, थोड़ा सा आपको पढ़ के आना है। ओके, सो आई विल सिंग द सॉन्ग एंड आई विल एंड द लेसन। ओके, रेडी फॉर द सॉन्ग? नेक्स्ट लेसन में यू हैव टू सिंग अलोंग विथ मी। मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी की बुद्धि के आगे औरंगजेब ने मुंह की खाई, तख्ता उलट बीजापुर का जब आदिल शाही से मुक्ति पाई, स्वराज्य हासिल कर शिवाजी ने किया था सपना वो साकार, छत्रपति बने शिवाजी ने सर्वधर्म स्वभाव का दिया उपहार, मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा, मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। शिवाजी। ओके, कैसा लगा आपको सबको सॉन्ग? चैट बॉक्स में बताइए। ओके, so shall we end this meeting?